So, good evening, all of you. As you have confirmed that my voice is audible and screen is visible, we will immediately start with the lecture. Okay. I understand that today we are starting 2-3 minutes little earlier compared to our scheduled time of 21 hours 10 minutes. But then can't help it. I expect that people should join at least 2 minutes before. So it's 21 past 08. This is for slide 2, which talks that everything is from internet and it is taken with a due regards and respect that it is used for some knowledge spreading called science communication. It is lecture 12 for the astronomy class, lecture 92 for the UPSC class, and we have some new, or you can say other students who are from the 5th and 6th standard, because today we are going to cover something which is already mentioned in this particular slide. We need not go through this slide. I'll just tell you what is it exactly. This particular lecture, which is mixed lecture of UPSC astronomy 5th and 6th, with the intention that the lecture is mainly scheduled for the astronomy course. Those who are very enthusiastic about this, they want to gather some additional knowledge. Young students are there, like Pradyum. He's from the 6th standard. Okay, but he is there, and he is there in our online class, and he showed interest in this class also. And he's quite what you can say, voracious reader. He knows many things. So I personally felt that this astronomy class student should need to know what is exactly state government or central board of education is teaching from nursery to 12th astronomy. तो वो astronomy का जब मैंने थोड़ा ढूंढा ढूंढी किया इधर उधर, so I got to know that at least sufficient astronomy is covered to arouse interest of the student, and that sufficient astronomy is taken up from 5th standard itself. So like 5th standard students have our earth and our solar system as a topic. 6th standard student have the universe as one lesson. 7th standard student have the world of star, in which sky watching and constellations detailing is there. 8th standard students have minute detailing about life cycle of stars, their properties, evolution, stages of stars, etc. And 9th standard students have telescopes, some gadgets handling basically. And then its types, then some other details like ISRO and other organizations. Then 10th standard have space missions and artificial satellite classification, what is uh, SLV, PSLV, etc. So I thought that I will cover this topic. I thought that I will cover this topic for all of you. So today's 1 hour, obviously, plus we will be covering what is taught to. Give me a second. There is some issue. Internet has gone. I'll just whether I'm audible. Just put in chat box. I don't. Yes, I'm audible. No, no, no. Normally, sometimes my screen goes. So whether screen is visible? Yes. Okay. Good. So I was showing you something. I'll just check what is the issue with my other system. Also there. Okay. Audible. Good. Great. I'm a bit confused some time. Okay. So in presentation part, we were talking about this particular thing in which we were discussing these things. Now, whether it's visible, just put in chat box. Screen is visible. Okay. Okay, great. See. So today we will be talking mainly about 5th and 6th standard state syllabus. But before that, I want to take your opinion from astronomy and UPSC class student. Anybody has got any problem? Because this particular syllabus of 5th and 6th will make you aware that really speaking, today's date, who are in the school, colleges, have got sufficient opportunity provided by state government.
स्टेट गवर्नमेंट की शिक्षा में इतना प्रावधान तो जरूर है कि आप सबको अच्छे से एस्ट्रोनॉमी सिखाई जा सके। ओके, तो भाई संकल्प, एनी प्रॉब्लम? संकल्प जी कुछ प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। संकल्प ना बोल रहा है तो बाकी किसी को नहीं पूछते जा रहा। लेट्स गेट इनटू दिस फिफ्थ एस्ट्रोनॉमी लेसन। दिस इज योर कवर पेज, ये आपका कवर पेज है जो एस्ट्रोनॉमी की किताब, आपकी साइंस की किताब है उसमें ही ये है। इसमें एक टेलीस्कोप दिखाया गया है जैसे सिक्स के क्लास के भी किताब में उनके लेसन में दिखाया गया। एंड दिस इज व्हाट वी हैव यूनिवर्स। सब क्या है देखिए, इसको हम समराइज करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। कि हम जब भी आसमान की तरफ देखते हैं हमको बहुत सारी चीजें दिखती है, उसमें कुछ चीजें होती है जिनको हम स्टार बोलते हैं। ओके, कुछ स्टार बहुत ही ब्राइटली विजिबल होते हैं, कुछ थोड़े डीम टाइप के दिखते हैं। ओके, म्हणजे खूप काही ब्राईट असतात तारे, तर काही मात्र खूप कमी ब्राईट असतात, खूप नाजूकसे दिसत असतात। काही गोष्टी ट्विंकल करतात, म्हणजे काय करतात, लुकलुकतात। कुछ चीजें ट्विंकल नहीं करती। द सन एंड मून आर कंपैरेटिवली क्लोज। सन म्हणजे सूर्य, मून मतलब चंद्रमा हमसे करीब है, तो उनका एग्जैक्ट जो सर्कुलर शेप है वो हमको दिखता है। बट जहां तक तारों की बात है, कुछ और जैसे मिटियोर्स दिखते हैं, मिटियोर शॉट, तो उनका एग्जैक्ट शेप हमको समझ में नहीं आता। ओके, तो हम चलते हैं कि ये कोशिश करके देखिए कि सपोज आपको मैंने बोला कि आप अपने टेरेस पे मम्मी डैडी के साथ या पेरेंट फैमिली मेंबर्स के साथ कभी तो जाइए। जैसे कि चलो आपने, आज मैंने बोला कभी 13 तारीख को, तो आप 15 तारीख की शाम को फ्राइडे या 16 तारीख की शाम को सैटरडे आसमान को देखने चले गए। फिर 15 दिन बाद 30 तारीख को भी आपने आसमान को देखा। तो ये जो 2 बार आपने देखा 15 दिन के गैप में, तो आपको आसमान में क्या दिखा? जो दिख रहे थे रेगुलर तारे, क्या वो वही उनकी जगह पे थे कि उन्होंने जगह बदल दी? या फिर जो पहले ट्विंकल कर रहे थे अभी भी ट्विंकल कर रहे हैं क्या? क्या उनका कलर और साइज बदल गई क्या? और जैसे मैंने एक चीज बोली थी कि उनकी पोजीशन बदल गई क्या? अभी ये सब चीज आपको क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आप इतने छोटे हो। यंग जनरेशन के लिए ये समझना जरूरी है कि आसमान में सभी कुछ परमानेंट नहीं है। पोल स्टार भी परमानेंट नहीं है, ये भी हमने देख लिया था कुछ बच्चों के साथ। तो ये चीजों में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि चंद्रमा, भाई 15 तारीख को जो शेप था वो ना 20 तारीख को होगा, ना 28 तारीख को होगा, ना 2 तारीख को होगा। तो चंद्रमा शेप बदलता है, उसका ब्राइट पोर्शन बदलता है, तो क्यों बदलता है ये आपको ऑब्जर्व करना है, डिस्कस करना है। और आजकल आपके सिलेबस में ये ट्राई दिस नाम की चीज आ गई जो हमारे टाइम पे नहीं थी। अभी जो 2-4 हफ्ते के गैप में आपने आसमान देखा, उसमें आपको एक चीज देखनी है, ऑन बोथ नाइट्स ड्रॉ पिक्चर ऑफ इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ मून। तो संकल्प जी ने यहाँ पे बताया है कि ब्राइटनेस, ब्राइटन पोर्शन ऑफ द मून चेंजेस, दिस इज कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। और ये फेजेस ऑफ मून न्यू मून से फुल मून तक और फुल मून से न्यू मून तक छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा होता रहे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज भी होती है, हर वक्त शाम को 6 बजे आसमान में सर पे या पूरब की तरफ या पश्चिम की तरफ चंद्रमा नहीं होता, वो अपनी जगह बदलता है। और ये सारी चीज समझने के लिए आपको इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना। ये हमने हमारे सबसे करीब वाले चंद्रमा की बात, सूरज के बारे में भी ढेर सारी बातें की सकती है। और आज हम बात करेंगे तारों के बारे में। स्टार्स के बारे में क्या लिखा गया? द हेवनली बॉडीज दैट ट्विंकल आर कॉल्ड स्टार। प्लैनेट्स के बारे में क्या लिखा होगा? द हेवनली बॉडीज विच आर ग्लोइंग बट दे डू नॉट ट्विंकल आर प्लैनेट्स। अभी ये डेफिनेशन एक्चुअली गलत है। आप आसमान में देखोगे तो जो भी हॉराइजन मतलब क्षितिज रेखा के आसपास है वो चीजें आपको ट्विंकल यानी लुक करते हुए दिखेंगी, ब्राइटनेस कम ज्यादा होता हुए दिखेगा। ओके, पर जो भी सीधे सर पे है बहुत ही रेयरली वो आपको ट्विंकल करते हुए दिखेंगी आंखों से। तो ये आप जो फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनका टॉपिक चल रहा है, बट बड़े बच्चों है उनको बता दूं कि तारे ट्विंकल करते हैं तो अपने ऊर्जा निर्माण करने की क्षमता के कारण उनका ब्राइटनेस कम ज्यादा होता है, ये यहाँ बताने की कोशिश होती है। और प्लैनेट ट्विंकल नहीं कर सकते ये बताते वक्त कि प्लैनेट को अपनी रोशनी नहीं होती, वो रिफ्लेक्ट करते हैं, ये बताने की कोशिश होती है। ये आपको यहाँ पे बताया गया।
फिर यहाँ पे भी प्लैनेट्स नाम के हेवनली बॉडीज दैट डू नॉट ट्विंकल, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नीचे बड़ा सा चित्र दिखाया, इसका नाम है सूरज। और ये जो बड़ा सा चित्र सूरज का दिखाया आपको, इसके नीचे सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड स्टार इवन एज दे रोटेट अराउंड देम्स। आपको ये दो मोशन समझनी होंगी हर बॉडी की जो आसमान में है। हर चीज अपने खुद के एक्सिस के अराउंड घूमती है, और साथ ही में वो उसका जो पेरेंट बॉडी है या उसका मेन प्लेनेट है उसके अराउंड घूमती है। और वो जो बॉडी प्लेनेट के अराउंड घूमती है, वो प्लेनेट भी किसी तारे का चक्कर लगाता है, और ये तारा भी किसी गैलेक्सी में घूमता रहता है, और ये गैलेक्सी भी ब्रह्मांड में यानी यूनिवर्स में इधर उधर भागती रहती है। और ये सारी चीजें जो मूविंग है, इनकी वेलोसिटी अगर मैं कैलकुलेट करने बोल दूं तो आपको बहुत बड़ा वैल्यू मिलेगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते, और उसमें आज जाएंगे नहीं, हम देखेंगे सोलर सिस्टम। Our Earth is planet. It gets light from sun. Movement around the sun is called revolution of the Earth. Okay? And जो खुद के एक्सिस के अराउंड है उसको बोला जाता है स्पिनिंग और रोटेशन। दे आर 7 अदर प्लैनेट्स, आप सबको पता ही है। इनका नाम मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। छोटे बच्चों के लिए हो रहा है तो आप ज्यादा बड़े बच्चों को मैं एड्रेस नहीं कर रहा। एवरी प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। आपको कुछ डाउट है तो आप चैट बॉक्स में प्लीज लिखिए। कोई जल्दबाजी नहीं की, दो टॉपिक, दो स्टैंडर्ड का सिलेबस कवर करना है। और जो या माइक ऑन मत करो आदेश, क्या प्रॉब्लम है? माइक ऑन क्यों हो रहा है बार बार? कोई भी माइक ऑन मत करिए, तो उससे क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। आप लिख सकते हो चैट बॉक्स। हम बात कर रहे थे कि फिफ्थ के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के सिलेबस में हम ये उनका टॉपिक पढ़ रहे। फर्स्ट चैप्टर था जो ऑलरेडी बच्चों का कवर हो चुका है। मैं सिर्फ यहाँ आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आपको भी एस्ट्रोनॉमी पढ़ाया जा रहा है जिसमें आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं कि भाई सोलर सिस्टम में अर्थ जो या प्लैनेट जो रिवॉल्व करते हैं सन के अलोंग स्पेसिफिक पाथ, दिस पाथ इज नोन एज प्लैनेट और सन विच इज स्टार, सन तारा है अपना, एंड प्लैनेट दैट रिवॉल्व अराउंड आर कॉल्ड एज सोलर, आर टुगेदर आर, सब मिल के सिस्टम को बोला जाता है सोलर सिस्टम। अदर हेवनली बॉडीज में क्या क्या आता है? जैसे सोलर सिस्टम में अगर सूरज है, बहुत सारे प्लैनेट्स है 7, और इनके अलावा 7 क्यों, 9, सॉरी 9 नहीं, प्लूटो को हमने हटा दिया डॉर्फ प्लैनेट बोल के, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अदर हेवनली बॉडीज में सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स क्या है? सैटेलाइट्स मतलब इन शॉर्ट चंद्रमा, नेचुरल सैटेलाइट की बात करें तो हर एक को होते हैं, यस। सिर्फ शुरुआत का मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह छोड़ेंगे, वीनस यानी शुक्र ग्रह छोड़ेंगे, तो पृथ्वी को चंद्रमा है जो हमसे 3.5 लाख की दूरी पे है। फिर आगे जाएंगे तो मार्स को भी है, फिर उसके आगे जाएंगे तो भाई जुपिटर को भी है, फिर सैटर्न को भी है, फिर यूरेनस, नेपच्यून, ऐसे करते प्लूटो नाम का जो ड्वार्फ प्लेनेट है उसको भी सैटेलाइट। ये सैटेलाइट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ। मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम हैव सैटेलाइट्स। द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन, moon as seen on the full. ड्वार्फ प्लैनेट क्या है? देर आर सम स्मॉलर हेवनली बॉडीज। आसमान में कुछ छोटे चुटकू पुटकू बॉडीज घूमती रहती है, उन सबको ड्वार्फ प्लैनेट नहीं बोलते। किसी को कॉमेट बोलते हैं, किसी को एस्टेरॉइड बोलते हैं, किसी को मीटेरॉइड बोलते हैं। तो कुछ जो प्लैनेट की तरह है बट प्लैनेट की साइज से छोटे हैं, और प्लैनेट के लिए जो सारे नियम है वो फॉलो नहीं करते, उनको ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाता है। ड्वार्फ प्लैनेट रिवॉल्व इंडिपेंडेंटली अराउंड द सन, दे हैव देयर ओन ऑर्बिट। अब एस्टेरॉइड में आगे, बिटवीन द प्लैनेट मार्स एंड जुपिटर देयर इज अ बैंड ऑफ न्यूमरस स्मॉल हेवनली बॉडी। बहुत सारे टुकड़े घूम रहे हैं मंगल और गुरु ग्रह के बीच, इनको बोला जाता है एस्टेरॉइड। ओके, यानी उल्का पिंड। ओके, कंपेयर टू सन अदर हेवनली बॉडीज इन सोलर सिस्टम आर मच स्मॉलर। जो स्केल डायग्राम है जो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है, उसके हिसाब से सन के हिसाब से सोलर सिस्टम के सारे चीजें जो है इतनी छोटी है कि सूरज 99.96 है, और बाकी छोटा सा 0.04 में, 0.0 या 0.1 में पूरी सोलर सिस्टम के बाकी ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो हम अभी देखेंगे यहाँ पे क्या दिखाया। ये जो दिखाया ये भी सही नहीं दिखाया, क्योंकि यहाँ पे जो सूरज दिखाया उसकी साइज
इधर के बाकी प्लैनेट से काफी छोटी दिखाई देती है, मतलब जो हो एक्चुअल है उससे। आप सोचिए कि जो यहाँ पे पृथ्वी दिखाई दी है, देख रहे हैं पृथ्वी दिख रही, उसके बगल में चंद्रमा भी दिखाया। इस पृथ्वी जैसी 10 लाख पृथ्वियां सूरज में रह सकती है, कितना सूरज बड़ा है जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे। सीक्वेंस देखने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले पहले है मर्क्यूरी, दिख रहा है। दूसरा है वीनस। तीसरा अर्थ और मून का सिस्टम। चौथा है चौथा है मार्स। पांचवा जुपिटर। और मार्स और जुपिटर के बीच में ये एस्टेरॉयड बेल्ट। फिर हम चल रहे हैं आगे, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और ये प्लूटो। ये सारी चीजें जो है ये अपने सोलर सिस्टम को काउंट होती है। बट इसके आगे भी कुछ है जिसका नाम है क्यूपियर बेल्ट, और उसके आगे कुछ है जिसको बोलते हैं उर्स क्लाउड। और आप इतने छोटे हो सब कि आपको यह अभी नहीं पढ़ाया जाएगा। अभी हम चलेंगे आगे। ये चीज में आप देख सकते हो, अभी आपको थोड़ा बताना पड़े। चैट बॉक्स में सब लोग लिखना चालू करो, बड़े छोटे एस्ट्रोनॉमी यूपीएससी वाले सब लोग। सर डू एवरी सेलेस्टियल बॉडीज मूव? यस पूर्वा जी, सारी सेलेस्टियल बॉडीज ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के अंडर मूव करती है। जैसे सूरज है, सूरज ने पकड़ के रखा है सोलर सिस्टम की सारी चीजों को। और अगर आप बात करोगी सूरज को किसने पकड़ के रखा है, तो सूरज को पकड़ के रखा है मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में जो बड़ा सा ब्लैक होल है उसने। तो बोलेंगे मिल्की वे गैलेक्सी को किसने पकड़ के रखा है, तो मिल्की वे गैलेक्सी को बिग बैंग अगर हम मानते हैं तो बिग बैंग के निर्माण जो ऊर्जा हुई तैयार, डार्क एनर्जी डार्क मैटर इन सब का जो इन्फ्लुएंस है उसके तहत ये अपनी मिल्की वे गैलेक्सी मूव हो रहे हैं। तो आप समझ सकती हैं कि सेलेस्टियल बॉडीज मूव, एवरी सेलेस्टियल बॉडी मूव्स। अभी सब बड़े छोटे चैट बॉक्स में जवाब देना है। विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन, फटाफट जल्दी। वेरी गुड। सो विच प्लैनेट इज द नियरेस्ट टू द अर्थ, लिखो जल्दी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चे लोग। विच प्लैनेट इज द नियरेस्ट टू द अर्थ? क्या है ये, थ्री क्या है, थ्री क्या है? वीनस लिखा, बड़े बच्चे लिख रहे, पूर्वा ने भी लिखा, फिर श्लोक ने भी लिखा, फिर गलती से अनघा ने गलती कर दी, मार्स लिखा। मार्स नहीं है, हमसे करीब वीनस है ना। फिर आगे चलेंगे, एट व्हाट पोजीशन इज द अर्थ फ्रॉम द सन। अच्छा वो थर्ड जवाब था तो वो उसके लिए। गुड। विच प्लेनेट इज प्लेस्ड बिटवीन अर्थ एंड मर्क्यूरी? आपने लिख दिया वीनस। ओके, लिखो लिखो, लिख दिया। चलो, आपका स्पीड बहुत अच्छा है सर, अब बोर नहीं हो रहे ना। विच प्लेनेट इज द फारदेस्ट फ्रॉम द सन? चलो लास्ट, लास्ट का जवाब दो जल्दी। गुड, थैंक यू पूर्वा। ओके, तो नेपच्यून। गुड, मतलब आप इतने स्मार्ट है कि आप सबको समझ में आ गया, आपके दिमाग में फिट हो गया कि प्लूटो इज नो मोर कंसिडर्ड प्लैनेट, इट इज ड्वार्फ प्लैनेट। तो भाई फारदेस्ट हमारे लिए नेपच्यून। गुड, वेरी गुड। अभी ग्रेविटी के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। जैसे अभी पूर्वा ने ही पूछा था, पूर्वा ने ही पूछा था। हाँ पूर्वा ने ही पूछा शायद। यस, तो जैसे उन्होंने पूछा था कि भाई सब चीजें मूव होती है, तो मैंने बोला ग्रेविटी से मूव होती है। तो ग्रेविटी मतलब गुरुत्वीय बल जो पहले से एग्जिस्ट करता है हर मास वाली चीजों सिस्टम के साथ। तो ये जो ग्रेविटी है इसके बारे में फिफ्थ स्टैंडर्ड को काफी डिटेल में अच्छे से दिया है। और planets keep revolving around the sun at a fixed distance in a fixed orbit due to gravity. In same way satellites revolve around planets, and in same way अपने जो कमर्शियल सैटेलाइट है आर्टिफिशियल, वो पृथ्वी का चक्कर लगा है। तो ये सारी चीजें जो है वो ग्रेविटी डिपेंडेंट है। अभी मुझे बताओ कि हम कुछ भी चीज पृथ्वी पे हो, दुनिया में इधर उधर हो, फिर वो बारिश हो या फिर रॉक्स हो, फ्लावर्स हो, ये सारी चीजें कौन सी दिशा में गिरती है? तो आप सब बोलेंगे वो पृथ्वी के सरफेस के दिशा में गिरती है। करेक्ट। तो ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन ऑन इट। और जो ऊपर भी फेंकेंगे कितने भी जोर से तो भी वो नीचे की तरफ आती है। तो हम कहाँ फेंकते हैं चीजें?
तो आप बोलेंगे सर अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर से लेके चंद्रमा तक के बीच में जहां एटमॉस्फेयर नहीं है वहां क्या है, तो बहुत सारे लोग टेंशन में आ जाएंगे कि क्या है। तो वहां की जगह जो खाली है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लिखिए चैट बॉक्स में। स्पेस बोला। आई एम ऑडिबल और नॉट? पुट इन चैट बॉक्स। स्पेस बोला जाता है, वेरी गुड। तो यही आप, ये फिफ्थ के स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ये डेफिनेशन आ गया कि emptiness between and beyond the stars planet is called space और outer space। तो पहले मैंने स्पेस डिफाइन किया, सोलर सिस्टम के बाहर बात करेंगे तो सोलर सिस्टम के बाहर का आउटर स्पेस। पीपल हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट ह्यूमन बॉडी, दे हैव वांटेड टू रीच। अभी सबको जाना था कि भाई आसमान में टिमटिमाते जो तारे होते हैं उधर तक हमको जाना है। तो किसी ने बोल दिया भाई ये जो अच्छे लोग मरते हैं वो उनको वहां भगवान जगह दे देता है। फिर किसी ने कुछ और बोल दिया, तो बहुत सारी स्टोरीज बनी, बट कोई जा नहीं पाया जब तक इंसान ने एक इम्पोर्टेंट चीज का आविष्कार नहीं किया। इसको बोला जाता है स्पेस शटल। तो स्पेस शटल के बारे में और स्पेस मिशन के बारे में इंडिया के यहाँ लिखा। तो दो इंपॉर्टेंट मिशन है, चांद्रयान 1 और MOM, दैट इज मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो चांद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 की थी। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था। मंगलयान जो है MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है, ऑर्बिटर मिशन है वो, ऑर्बिटर था, मार्स के चक्कर लगा रहा था वो, इसलिए उसको ऑर्बिटर बोला जाता है। कुछ चीजें वहां किसी प्लेनेट के आसपास से उड़ के चली जाती है और जाते जाते दो चार कुछ फोटो खींच लेती है, रिसर्च रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को टच कर लेती है, तो उनको फ्लाई बाय मिशन बोला जाता है। तो इस तरीके से 24 सितंबर 2014 में, 5 नवंबर 2013 को इट वॉज लॉन्च एंड इट वॉज एस्टेब्लिश इन 24 सितंबर 2014। आज से तकरीबन 6 साल पहले ये सक्सेस इसरो और इंडिया ने देखा। यहाँ उसके कुछ फोटोज। अभी हम चलेंगे आगे। अभी हम बात कर रहे थे स्पेस शटल चलता कैसे है। तो भाई फोर्स अगेंस्ट, सॉरी, एनर्जी टू गो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज गिवन बाय इंजन ऑफ द रॉकेट। रॉकेट टेक्नोलॉजी और स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी फॉर द क्रॉसिंग द एटमॉस्फेयर और क्रॉसिंग द लिमिट्स ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम एनी प्लैनेट प्रेजेंटली वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थ। वन ऑफ द आप दिवाली में फायर क्रैकर्स नहीं जलाने चाहिए ऐसे लोग बोलते हैं, जो सही बात है पोल्यूशन के लिए। बट जो फायर क्रैकर्स के पीछे फंडा है, स्पेशली रॉकेट के पीछे, उसी तरीके का कुछ लगभग फंडा ये जो बड़े बड़े SRB का मतलब क्या है, सॉलिड रॉकेट बूस्टर। आपका जो दिवाली का रॉकेट है वो भी SRB ही है, सॉलिड रॉकेट बूस्टर ही है वो। तो आपको ये समझ में आना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए। The design of the rocket is such that firecracker is pushed in a certain direction at a great speed। तो यहाँ कंपैरिजन के तौर पे उन्होंने कुछ दिखाया। तो वेरी पावरफुल रॉकेट्स आर यूज्ड। बहुत बड़े बड़े रॉकेट होते हैं जिनका वजन लाखों में होता है। जैसे डिस्कवरी, कोलंबिया, इनका लॉन्चिंग होने के लिए जो रॉकेट्स यूज होते हैं वो एक एक रॉकेट का वजन 6-6 लाख किलो होता है। अभी आज हम उसमें ज्यादा डिटेल में जाएंगे। हमारी कंट्री जो है इंडिया वो भी इसमें काफी अच्छे से परफॉर्म कर रही है, क्योंकि ये जो शुरुआत है वो शुरुआती दौर में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने जब न्यूक्लियर मतलब एटॉमिक एनर्जी कमीशन या डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को एस्टेब्लिश किया, न्यूक्लियर रिसर्च शुरू हो गया, उसका ही एक मेजर आउटफिट बना स्पेस रिसर्च। और ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है। एक का नाम है DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, AEC एटॉमिक एनर्जी कमीशन, और दूसरा है स्पेस रिसर्च मतलब इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें ज्यादा जाएंगे नहीं। तो जैसे हम चीजों को भेजते हैं, कैमराज को भेजते हैं, वैसे इंसानों को भी आसमान में भेजा जाता है। जो नॉर्मली साइंटिस्ट होते हैं जो रिसर्च करते हैं वहां पे, आजकल नॉर्मली भेजा जाता है ISS पे। ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कितने लोगों ने आसमान में ISS शाम को आसमान देखते वक्त देखा, लिखिए चैट बॉक्स में। नो भी लिखेंगे तो चलेगा, मतलब मुझे समझेगा कि मेरी आवाज आ रही है, बट आपने कभी देखा नहीं। सर ऐसा श्लोक ने देखा।
आदेश को तो मैं 4-5 बार दिखा चुका हूँ। हमारे गांव के बच्चों को हम लोग ये सब चीजें दिखा चुके हैं, क्योंकि हमारे घर पे जब वो आते हैं तो हम उनको दिखाते हैं। तो भी उनको नहीं मालूम, बट बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को यहाँ मालूम है। जैसे श्लोक, जिसका इंटरेस्ट है उसने देखा है। फिर अविरत चौहान जी ने देखा है, हर्ष ने देखा है, सॉरी हर्ष नहीं, प्रद्युम्न ने देखा है। दीका वाजेकर मतलब अनुज ने देखा है, मानना पड़ेगा। मंगलम ने नहीं देखा, वेरी बैड। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा। तो जिनको दिखाने के बाद दो याद नहीं रखते उनको पकड़ के पीटना पड़ेगा। जिनको जिन्होंने देखा नहीं उनको दिखाएंगे, जब पेंडेमिक खत्म हो जाएगा मेरे घर पे आप आओगे। तो ये जो आईएसएस के रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए वहां कुछ दिन रह के रिसर्च करने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं। बट शुरुआती दौर में जब इंडिया के पहले व्यक्ति गए, उनका नाम था क्या नाम था, बताइए जल्दी। राकेश शर्मा। फॉरेन लीडर बोलते हैं ये बेसिकली। एक आई मिसटूक इट फॉर द नेचुरल सेटलमेंट। ओके ओके, ठीक है श्लोक, डोंट बॉदर, आप मेरे घर पे जब आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो राकेश शर्मा जी गए थे इंडिया की तरफ से पहली बार 1984 में। और जब इंदिरा गांधी तब की अपनी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने उनको पूछा कि आसमान से इंडिया कैसे दिखता है, तो उन्होंने बहुत ही लाजवाब टाइप का जवाब दिया, स्मार्ट जवाब। सारे जहां से अच्छा हिंदोसता हमारा। तो इसको बोलते हैं स्मार्टनेस, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड नाम की चीज बोलते हैं। तो जैसे राकेश शर्मा जी गए थे, वैसे कल्पना चावला जी गई थी, सुनीता विलियम्स गए थे। इसी तरीके से एक डॉग को भी भेजा था जिसका नाम लाइका था। ओके, आसमान में पहली बार जाने वाले रशियन व्यक्ति का नाम यूरी गैगरिन था। ये सारी जनरल नॉलेज वाली चीजें हैं। जो बच्चों को पसंद है उनको इस तरीके की किताबें पढ़नी चाहिए, जिसको आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देना। आज हम उसमें ज्यादा बात करेंगे नहीं। Man-made satellites provide useful information on agriculture, environment, weather, forecasting, making maps, searching for water and mineral well, बहुत सारी चीजें। आज हमारा फोन पे जो बात होता है, हमारा टीवी जो दिखता है, हवामान का जो अंदाजा दिया जाता है, ये सारा काम जो है वो इंसान जो आसमान में सैटेलाइट भेजता है उसके मदद से चलता है। और हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी इस मामले में इतनी अच्छी है कि आप जब भी सुनते हैं कि 2 दिन बाद साइक्लोन आने वाला है, वो यहाँ से इधर से गुजरेगा, आजकल हम काफी सटीक अनुमान लगाते हैं, बिकॉज ऑफ द कर्टसी ऑफ द आईएमडी एंड इसरो और उनके रिलेटेड डेवलप की गई टेक्नोलॉजी। Always remember, space scientists have not yet been able to find a single other planet which has life on it. हमारे पृथ्वी के अलावा आज तक हमको पृथ्वी जैसा कोई इवॉल्व सिविलाइजेशन रहती है ऐसे टाइप का ग्रह नहीं मिला। तो अगर हम पृथ्वी पे रहते तो यह हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है कि हम पृथ्वी को बचाए। अपने मम्मी डैडी का हम जैसे केयर करते हैं, उसका जैसे केयर करते हैं, वैसे हमको पृथ्वी का और पृथ्वी के ऊपर के नेचुरल रिसोर्सेज का केयर करना चाहिए। व्हाट वी लर्न, हमने क्या 5th क्लास के स्टेट बोर्ड के महाराष्ट्र के इंग्लिश मीडियम के किताब में एस्ट्रोनॉमी के बारे में क्या पढ़ा? ये पढ़ा कि सन इज स्टार, ऑल अदर बॉडीज in solar system get light from sun and planet, their satellite, dwarf planet, asteroid, they go around sun called system, solar system. things on the earth Things on the earth remain on it due to force of gravity. Okay, to travel in the space, earth's gravitational force has to be overcome, which is done by the rocket technology. Okay, तो ये होने के बाद अभी क्लास खत्म। क्लास कौन सा? 5th स्टैंडर्ड का। फिर 6th स्टैंडर्ड का भी चैप्टर खत्म होने वाला है। आज हम लोग एस्ट्रोनॉमी के और यूपीएससी के बच्चों के लिए इसी को जनरल नॉलेज के तौर पे इस्तेमाल करने वाले हैं। आपका स्पेशली अलग से कॉन्स्टिलेशन वाला क्लास नहीं होगा, इसके लिए मेरी तरफ से सॉरी। अभी हम सबसे जवाब लेंगे। चलो, इधर मैं एक सवाल दिखाया है, आप सबको ये सवाल पढ़ना है और अपने हिसाब से जवाब लिखना है इन शॉर्ट चैट बॉक्स। कोई घर पे कुछ काम नहीं करेगा इधर, अब भी मतलब होमवर्क नहीं होता है मेरे क्लास में, अभी के अभी आपको बताना है। सोचिए कि कोई एस्टेरॉइड निकला अपनी जगह से, एस्टेरॉइड बेल्ट से, और सूरज की तरफ भागने लगा। सूरज ही तो खींचता है ना, खींचता रहता है ग्रेविटेशन से, गुरुत्वीय बल से। और रास्ते में बीच में आ गई पृथ्वी।
अभी ये जो पृथ्वी को वो टकराने वाला है और उसकी वजह से जो हाल होने वाला है पृथ्वी के जीवों का, पृथ्वी का और हम सब का, तो भाई ये नहीं होना चाहिए। इसलिए आपके पास क्या सुझाव है? चलो जल्दी बोलो कि सपोज गलती से कोई बड़ा सा मिट्योर टूटता तारा पृथ्वी की तरफ आने लगे, तो आप क्या करेंगे पृथ्वी को और अपने आप को बचाने के लिए? ये मत बोलना कि हवाई जहाज लेके जाऊंगा और उसको कैच करूंगा। ओके, तो कुछ ऐसा बोलिए जो आपको किधर से पढ़ा, कहीं सुना, ऐसा। वैसे आप, मैं बोला वो भी बोल सकते थे क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा उठपटांग चीज आ सकता है, तो आपके भी आ सकता है। चलो आगे, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखिए। आलसी लोग है क्या इधर सब? वी कैन सेंड मिसाइल विथ स्पेस शटल। सानिया पाटिल, ओके। फिर कौन है? वी कैन, वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एस्ट्रॉइड। कैसे आने का, कैसे डायरेक्शन चेंज करेंगे वो भी आपको लिखना पड़ेगा। वी कैन फाइंड वेयर द एस्ट्रॉइड इज गेटिंग ऑन द अर्थ एंड इवैक्यूएट पीपल फ्रॉम देयर। वेरी गुड। ट्राई टू डाइवर्ट, तो दो लोगों ने डाइवर्ट करने की बात की बट उन्होंने लिखा नहीं कि कैसे। और जिन्होंने कुछ नहीं लिखा उन्होंने बोल दिया कि मिसाइल छोड़ेंगे और विथ स्पेस शटल। तो ये तीन लोगों का आंसर अगर हम क्लब करें तो एक आंसर बनता है कि हम कोशिश करेंगे कि भाई डायरेक्शन चेंज हो जाए उस मिटियोर की, एस्टेरॉइड की, उसको एक मिसाइल या कोई न्यूक्लियर वेपन या कुछ छोड़ के टकरा के उसके डायरेक्शन चेंज करना। सर देयर माइट नॉट बी कोलिजन सिंस इज अर्थ इज अ फास्ट रिवॉल्वर, वी कैन चेंज द डायरेक्शन बाय बूस्टर। नहीं नहीं, श्लोक थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, ठीक है, बट इसमें सबसे वन ऑफ द गुड आंसर इज संकल्प। प्रैक्टिकली आज के डेट पे हमारे पास इस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं है। आपने डाई हार्ड नाम की एक मूवी देखी है? कितने लोग ने देखी? डाई हार्ड नाम की एक फिल्म देखी थी? नो सर, माय मदर टेल मी दिस आंसर, दैट इज ओके। आप ये सब सी, मेरे क्लास में छोटे बड़े बुजुर्ग सब लोग बैठ सकते हैं और सब लोग, जो रिप्रेजेंटेटिव बच्चा बैठा है उसने जो जवाब दिया वो दे सकते हैं। इसमें कोई छोटा बड़ा का बात नहीं। मैंने जो बोला वो फिल्म देखा क्या आपने? नहीं? क्या देखते हो फिर? सिर्फ डोरेमोन देखते हो, दैट इज वेरी बैड। ओके, डोरेमोन भी देखना चाहिए बट साथ में ये अच्छी मूवी मम्मी डैडीज के साथ देखनी चाहिए। उसमें यही दिखाया गया कि बड़ा सा मीटियोर आ रहा है, तो उसको कैसे डाइवर्ट किया जाए। तो डाइवर्ट करने के लिए भाई एक जो ऑयल वेल की रिग खोदने वाले होते हैं ना, उनको का टीम बना के, उनको वैंडेम है उसमें शायद, तो उनको आसमान में लेके गए, फिर उन्होंने उस पर ड्रिल किया, फिर उनको बहुत मुश्किलें आई और फिर ड्रिल करके उधर उसने न्यूक्लियर वेपन फोड़ा और फोड़ने के बाद उसके टुकड़े हो गए। ये इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है आज की डेट, क्योंकि एक आके टकराने वाला था, अभी बहुत सारे आके टकराएंगे तो भी पृथ्वी का हाल बुरा हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो जो बड़े बड़े डायनासोर थे उनके मरने का कारण शायद इस तरीके का मीटियोरिक टकराव होगा। तो इम्पोर्टेंट है कि अगर छोटा मीटियोर है तो वहां से हम जितना दूर जाएंगे उतना बचेंगे। तो जो संकल्प ने सॉल्यूशन दिया दैट इज प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। दूसरे सॉल्यूशंस के ऊपर, अगर वो बहुत दूर है और डिटेक्ट हो गया, जैसे बीच में सोचा गया था कि 2026 में एक अपोफिस नाम का मीटियोर पृथ्वी के करीब से जा सकता है या पृथ्वी से टकरा सकता है, तो काफी टेंशन हो गया था उस तरीके की सोसाइटी में जो इस तरीके की चीजों पे ध्यान रखते हैं। बट धीरे धीरे ये पता चला कि शायद चांसेस बहुत कम है, तो भाई इस तरीके का कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं। नहीं तो उस तरीके का सोल्यूशन सोचा गया था जिसमें उस पे कोई मिसाइल अटैक या उस तरीके की चीज करने का सोचा था। एनीवेज, वी डिस्ट्रॉय द मीटियोर, वो डिस्ट्रॉय करने की बात हो रही है अभी। आर्मगेडन, ओके। ओके, आर्मगेडन की बात कर रहा हूँ मैं अभी, बराबर बोला। तो ये आर्मगेडन जो मूवी है उसकी हम बात कर रहे थे, अभी ब्रेन पावर यूज करते हैं, वैसे आपने थोड़ा तो जोर लगा दिया। आगे पढ़ी, देखिए स्क्रीन पे क्या लिखा है। व्हाट विल हैपन टू आवर सोलर सिस्टम इफ सन वेयर टू सडनली डिसअपियर। सब लोगों को जवाब लिखना है चैट बॉक्स में। अभी सुबह आपने उठे, आपने देखा कि 7:30 बजे सूरज जस्ट पूरब से सामने थोड़ा एक 5-10 डिग्री पे आया हुआ है, और सडनली भगवान जी को लगा कि आज इसको अल्टर कंट्रोल डिलीट कर देते हैं, तो सूरज को गायब कर दिया। ओके, अपनी सोलार सिस्टम से। ओके, तो क्या होगा ये आपको चैट बॉक्स में लिखना है।
तो श्लोक ने सिंगल वर्ड में लिख दिया डिस्ट्रक्शन. इट विल नॉट बी वेरी फास्ट डिस्ट्रक्शन, बट जैसे आगे इमीडिएटली अविरत जी ने लिखा टेम्परेचर डिक्रीज होना चालू हो जाए. तो इसी बात के जैसे शाम हो जाती है तो टेम्परेचर इमीडिएटली तो डिक्रीज नहीं होता है, बट होने लगेगा. दैट इज व्हाट इज ट्राइंग टू से. ओके ग्रेट. अभी यहाँ दो चीज आती. सन गायब होना मतलब हमारे पीछे की तरफ लेके जाना, या टोटली सोलर सिस्टम से सूरज को गायब ही कर देना. तो अगर गायब ही कर देंगे तो टेम्परेचर फास्ट डिक्रीज होगा. पीछे की तरफ जाएगा तो रात को जैसे होता है वैसे हो. देन लिखा देयर विल बी नो लाइफ. अभिजीत ने लिखा वी विल फ्रीज टू डेथ, ऑल द वेजिटेशन वुड डाई एंड वेरियस कैटास्ट्रोफिक थिंग्स विल हैपन. करेक्ट. देयर डार्क एवरीवेयर. वेरी गुड. प्रियंका जी ने, चौहान जी ने लिखा द प्लैनेट्स will lose their force of gravity. Planets will not lose. पाटिल मतलब सुषमा आरुष है. पाटिल सॉरी आरुष. प्लैनेट्स विल नॉट लूज फोर्स ऑफ ग्रेविटी. प्लैनेट्स को जो पकड़ के रखा है सूरज ने, उसकी जगह कोई और अभी जोर लगाना चालू कर देगा. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो जाएगी कि कौन किधर भागेगा कुछ समझ में ना आएगा. आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को टच किया. तो दिस इज वंडरफुल फ्रॉम सुषमा पाटिल मतलब आरुष पाटिल. ओके. देन लाइफ इज ओवर, ये प्रद्युम्न मोटे ने लिखा. इकड़े सर बोल रहे हैं ऑल लाइफ विल बी डिस्ट्रॉयड. दैट इज करेक्ट. बट देखो डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं वो बच्चे भी लिख रहे हैं, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कितनी अच्छी हो गई है. तो इस तरीके से जो मेहनती बच्चे हैं वो सिर्फ सर्टिफिकेट के पीछे न लगे, पढ़ाई में ध्यान दे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी सोच जो है वो काफी मैच्योर होने लगती है. तो ऑल लाइफ विल बी डिस्ट्रॉयड लिखा है सर ने. फिर दीपाली मतलब अदिति ने लिखा डार्क एवरीवेयर. करेक्ट. सर विल वी वी स्टॉप रोटेटिंग. नो, दीज आर द मोशंस गिवन टू अस बाय ओरिजिनल एनर्जी. तो जिनको रोकना अभी सन के हाथ में नहीं. हम ओके सन के अराउंड घूमना हम बंद कर देंगे इसको, क्योंकि सन तो गायब हो गया ना. बट हम किसी और के अराउंड घूमना चालू कर. सर योर साउंड इज ब्रेकिंग. सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग. संकल्प बोलो मेरा आवाज वॉइस इज क्लियर. Yes, sir. There is a disturbance between your voice. ओके. अभी एक मिनट. नेटवर्क तो है रे मेरा. एक मिनट होल्ड करिए. नेटवर्क इज फुल. हाउस नाउ इट. सर सम बैकग्राउंड वॉइस इज कमिंग. अच्छा अच्छा ओके. वो मुझे टच कर रहा है शायद हेडफोन इसलिए. अभी ठीक है. ओके. देयर इज सम डिस्टर्बेंस. यस. क्लियर नाउ. ओके. ठीक. सो वी वर टॉकिंग अबाउट दैट. आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज नहीं बताई जो मैं आप सब स्मार्ट लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा था. हमको 500 सेकंड पता ही नहीं चलेगा ना सूरज गायब हो गया. ये इंपॉर्टेंट चीज आप क्यों भूल रहे हैं. सूरज से निकली हुई आखिरी रोशनी हमारे पास 500 सेकंड बाद पहुंचती है. तो 500 सेकंड हमको पता चलेगा क्या. यस और नो. 500 सेकंड बाद पता चलेगा सूरज डिसअपियर हो गया. मतलब आपने सीधा उठ के बालकनी से आसमान की तरफ देखना चालू कर दिया तो सूरज था, और फिर वो सडनली गायब हो गया. ओके. तो वो एक्चुअली गायब 500 सेकंड पहले हुआ है. ये आपको समझ में आया. एवरीबडी अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल. ये फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे को भी समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर. ओके गुड. नाउ सपोज यू वांट टू. अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सबको ध्यान देना है. ओके. साबळे, विलास साबळे जी के आईडी से जो आ रहा है उनका फर्स्ट नेम नहीं पता मुझे. विलास साबळे जी, आप वो बच्चे फर्स्ट नेम लिखो. आई डोंट नो योर फर्स्ट. आई डोंट अटेंड दिस योर क्लासेस. सो हर्षद. हर्षद ओके. अभी ये सवाल आप सब लोग अच्छे से सुनो, और हर्षद आप भी चैट बॉक्स में अच्छा जवाब लिखो. जैसे सोचो आपका कोई दोस्त है जो मंगल ग्रह पे रहता है. ओके. और उसको आपके घर आना है, और आपका घर टेम्पररी मानते हैं कि आपका घर महाराष्ट्र में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पनवेल में है, अगावी में नहीं है. हम बोलते हैं महाराष्ट्र में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, और उसको आना है मंगल ग्रह से. और आप वो मंगल ग्रह पे ही एक ऑटो रिक्शा कर लिया. अभी वो एड्रेस क्या बताए. तो आपको वो यहाँ बताना है कि उसको एड्रेस क्या बताए. हाउ विल यू राइट योर एड्रेस इफ यू वांट देम टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली वेयर यू लिव. तो भाई देखो,
एक बच्चे ने तो अच्छा जवाब दिया, लैटिट्यूड प्लस लॉन्जिट्यूड आर ए प्लस डिक्लिनेशन। तो लैटिट्यूड प्लस लॉन्जिट्यूड चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आर ए प्लस डिक्लिनेशन चलेगा क्या? शायद सोचना पड़ेगा। एक सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट हमको देना है जो पृथ्वी के ऊपर है, बट उसको पता होना चाहिए। तो इसके लिए सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट्स और लैंजिट्यूड लैटिट्यूड इन सेलेस्टियल टर्म्स, ये हमको सोचना है। और सेलेस्टियल टर्म्स एटलीस्ट विथ रेफरेंस टू द सोलर सिस्टम। ओके। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि भाई मंगल से निकलेगा ना, तो वो जो फलाना फलाना एस्ट्रॉयड है, सॉरी वो तो बाद में है, आफ्टर दैट। तो मंगल से निकलने के बाद लेफ्ट रहना, राइट रहना, फिर पृथ्वी पे यहाँ पे उतरना, फिर वहां से ये पकड़ना, दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड। सो यू नो द करेक्ट आंसर, दैट लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड लिखना। वेरी गुड, स्मार्ट। नीचे जो सीक्वेंसिंग है वो हमने पढ़ लिया, तो हम उसमें और ज्यादा जाएंगे। हु एम आई, अभी आपको सबको इनका सही जवाब, वी कैन राइट अर्थ इंडिया महाराष्ट्र रायगढ़, या दैट्स ट्रू, ये हम लिख सकते हैं। बट देन द बेस्ट सिस्टम in terms of astronomy is giving the longitude and latitude or celestial coordinates. Is it clear, Chauhan? Okay, now we'll go. You can see me from the earth, but the lighted part of me that you see changes every day. किसने लिखा क्या क्या? मून लिखा लोगों ने। तो भाई रुक जाओ, मून तो लिखा आपने। तो ए के लिए मून ही है कि कुछ और भी है? चलो मैंने आपके हाथ में टेलीस्कोप पकड़ा। You can see me from the earth, but the lighted part of me that you see changes, इतना ही रखा। तो कुछ और का भी चेंज होता है क्या? लाइटेड पार्ट टेलीस्कोप से देखेंगे तो वीनस का चेंज होता है, मर्क्यूरी का भी चेंज होता है, या आप पक्का याद रखो। बट यहाँ हम चंद्रमा की ही बात करें। आई हैव माई ओन लाइट, इट इज ओनली फ्रॉम मी दैट द प्लैनेट्स गेट लाइट एंड हीट, सो इट इज सन। आई टर्न अराउंड माई सेल्फ अराउंड अ प्लैनेट एंड ऑल्सो अराउंड अ स्टार। कौन है ये भाई? इस सी का जवाब क्या है? आई टर्न अराउंड माई सेल्फ अराउंड प्लैनेट एंड ऑल्सो अराउंड स्टार। हो ना? क्या लिख रहे हो? सैटेलाइट, ये सन कौन लिखा? ओके, वो बी के लिए, सॉरी। अभी हम सी क्रॉस कर गए, सी में हमने सैटेलाइट लिखा। स्पेशली हम सैटेलाइट जब बात कर रहे हैं तो आपको लिखना होगा कि नेचुरल सैटेलाइट। सिर्फ सैटेलाइट नहीं ना, नेचुरल सैटेलाइट ना, चंद्रमा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी तो एक चीज होती है, वो खुद के अराउंड नहीं घूमता है। ओके। डी, आई टर्न अराउंड माई सेल्फ एंड रिवॉल्व अराउंड सन। तो ये है प्लैनेट्स, करेक्ट। अर्थ नहीं, सारे प्लैनेट्स। ओके। नो अदर प्लैनेट हैज लिविंग वर्ल्ड लाइक मी। किसी भी और प्लैनेट को मेरे जैसा लिविंग वर्ल्ड नहीं है। क्या है? पृथ्वी। फॉर व्हाट पर्पज आर रॉकेट यूज्ड इन स्पेस ट्रैवल? व्हाट इंफॉर्मेशन डू मैन मेड सैटेलाइट प्रोवाइड? तो पहले का अर्थ है, पहले का आंसर है रॉकेट्स आर यूज्ड, फॉर व्हाट पर्पज आर रॉकेट्स यूज्ड इन स्पेस ट्रैवल? रॉकेट्स का काम है अगेंस्ट द ग्रेविटी अर्थ से चीजों को एटमॉस्फेयर के बाहर लेके स्पेस में जाना। व्हाट इंफॉर्मेशन डू मैनमेड सैटेलाइट गिव्स? मैनमेड सैटेलाइट हमको सारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के रिलेटेड की, टोपोग्राफी की, मिनरल्स अवेलेबल, ये और बहुत सारी चीजें, खेती बाड़ी से रिलेटेड वेदर की जानकारी देते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल, सब्सटेंस एक्सेट्रा, इसकी बात कर रहे हैं। पर्पस आर रॉकेट यूज टू स्पेट, नहीं नहीं, ऊपर वाले का जवाब अलग है ना श्लोक। व्हाट पर्पस आर रॉकेट यूज इन स्पेस ट्रेवल? रॉकेट्स आर यूज फॉर टेकिंग थिंग्स अगेंस्ट ग्रेविटी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं है। ये तो हो गया थेरोटिक फिलोसॉफिकल जवाब। टेक्निकल जवाब है कि भाई टेकिंग इट आउट ऑफ ग्रेविटी फोर्स। ओके, और साइंटिफिक ये हमने कर लिया। अभी हमारा फिफ्थ का सिलेबस कवर हो गया। नीचे कुछ लिखा है कि एज एक्टिविटी, ये फिफ्थ के बच्चों को या सबको चार्ट्स बनाने हैं, स्पेस रिसर्च एंड डिस्प्ले। जब आप साइंस एग्जीबिशन में वगैरह जाते हो तो विच प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम हैव सैटेलाइट्स, इसका चार्ट आप बना सकते हो अच्छे से। तो ये हमारा आज का फिफ्थ का सिलेबस हो गया। अभी भी हमारे पास 10 मिनट है, तो हम सिक्स के सिलेबस में जाएंगे। पर उसके पहले पिकड़े सर से मुझे एक सजेशन चाहिए चैट बॉक्स में।
कि सर आप बोर तो नहीं हो रहे? हेमंत, डॉक्टर हेमंत पिकड़े जी, प्लीज स्विच ऑन योर माइक, and I hope we will be covering in next few lectures 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th syllabus just to make you all people aware कि स्टेट बोर्ड में सीबीएसई में आजकल एस्ट्रोनॉमी कितना क्या पढ़ाया जा रहा है। मेरी जिंदगी में नहीं पढ़ाया गया, आपके भी समय ये सब नहीं था, तो क्या आप बोर तो नहीं हो रहे? प्लीज। Not at all, not at all. So it is okay if another 4-5 lectures we will be covering this syllabuses. Yes, yes. Okay sir, ठीक। So thank you sir. We now go to the 6th standard syllabus of astronomy. कल हमने इन बच्चों को एक ग्लांसिंग आइडिया दिया था कि आज के लेक्चर में उनका एस्ट्रोनॉमी का क्लास होगा। सो अभी हम फटाफट इसको भी कवर करते हैं। मैंने बोला था 5th क्लास के भी किताब के ऊपर टेलीस्कोप का फोटो है, 6th क्लास के भी ऊपर लेसन के इसमें कवरिंग पेज पे वो है। तो यहाँ पे कुछ बताएं। मेक यूज ऑफ टेलीस्कोप टू ऑब्जर्व स्काई ऑन क्लियर नाइट विदाउट क्लाउड। टीचर्स के लिए सजेशन है कि अरेंज ऐसे टाइप के ऑब्जर्वेशंस, और बच्चों को सजेशन है कि भाई किताबें लेके जाओ, तो आपको कुछ कंसल्ट करना है, डिस्कशन करना है, विचार विनिमय करना है, तो आपको मदद हो सकती है। तो हमने इनसे बात किया कि यहाँ जो दिखाया है वो किस टाइप का टेलीस्कोप है। तो कल के बच्चों को जवाब पता है, आज के बड़े बच्चों को भी नहीं पता है, तो सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे कि ये किस टाइप का टेलीस्कोप है। लेंस वाला है, मिरर वाला है। तो पूर्वा मूर्ति से मतलब पूर्वा करेक्ट किया। उन्होंने लिखा रिफ्रैक्टर, श्लोक ने लिखा रिफ्लेक्टर, दीपा पिलनकर ने लिखा, अदिति ने रिफ्रैक्टर, फिर ओम ने लिखा मिरर। अभी आप जो है ये मिरर वाला तो नहीं है, ये लेंस वाला है। तो लेंस वाला है ये बोलने के बाद श्लोक का कहना क्या है? श्लोक, रिफ्लेक्टर में मिरर होता है, लेंस होता है? बोलो बोलो, माइक ऑन किया है अभी तो बोलो। ओके ठीक है। श्लोक हाँ, तो ये लेंस वाला है, तो ये रिफ्रैक्टर है। ओके, तो रिफ्रैक्टर है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। इस्तेमाल की जहां तक बात है, जब आप मेरे यहाँ आएंगे तो हम करेंगे। आज हम कुछ और चीजों में जा रहे हैं जो 6th स्टैंडर्ड को बहुत ही अच्छे से कवर किया इन लोगों ने। एंड दे हैव टोल्ड एंड दैट इफ यू ऑब्जर्व क्लियर स्काई ऑन अ डार्क नाइट यू विल सी smoky white band full of stars spreading north south in the sky. This is Milky Way in Marathi. Hindi it is also known as मंदाकिनी दीर्घिका। अंग्रेजी में बोलेंगे मिल्की वे गैलेक्सी, मराठी हिंदी में बोलेंगे मंदाकिनी दीर्घिका। अभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ जो फोटो दिखाया, जो आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये बना बनाया फोटो है। ऐसा कोई फोटो लिया नहीं गया, क्योंकि हम कभी गैलेक्सी के बाहर नहीं गए। ये इंटरप्रिटेड बनाया हुआ मॉडल है अदर गैलेक्सीज को देख के। बट एक इंपॉर्टेंट चीज की बात कही गई, जो मैं बहुत दिन पहले आपको क्लास में दिखाया था, जब मैं कंजंक्शन सिखा रहा था एस्ट्रोनॉमी के और यूपीएससी के बच्चों को। एक बैंड दिखता है आसमान में, नॉर्थ से साउथ जाने वाला, बहुत सारे तारों का ब्राइट बैंड, एंड दैट इज आर्म ऑफ मिल्की वे गॅलेक्सी। आपल्या मंदाकिनी दीर्घिकेचा एक हात आहे, हात म्हणजे बाहू आहे। बरेचसे हात आहेत। आता इथे तुम्हाला, तुम्ही जेव्हा मोठं कराल हे चित्र, तर बघा बरेचसे आर्म्स दिसत आहेत। मी त्यांना आता तुम्हाला मार्क करून दाखवतो। एक आर्म हा आहे, एक हा आहे, दुसरा हा आहे, तिसरा हा आहे, हा आहे, हा आहे। हे जे आर्म्स आहेत ना, हे तुम्हाला दिसत आहेत का स्क्रीन मध्ये? ओके, हे जे आर्म्स आहेत यातले काही आर्म्स आपल्याला नॉर्थ साऊथ मध्ये दिसतात। ओके, नॉर्थ टू साऊथ डिरेक्शन मध्ये दिसतात। हे आर्म्स जे आहेत, हे आपल्याला जे दिसतात त्याच्या बाबतीत इथे लिहितात। ओके, अ ग्रुप ऑफ इनन्यूमरेबल स्टार्स अँड देअर प्लॅनेटरी सिस्टम आर टुगेदर नोन ॲज गॅलेक्सी। बरेचसे तारे, त्या ताऱ्यांच्या तारका समूहांच्या बऱ्याचशा ग्रुप, त्या सगळ्यांचा मिळून जो मोठा एक जमावडा म्हणू शकतो आपण, ग्रुप बनतो, त्या सगळ्यांना म्हटलं जातं गॅलेक्सी किंवा दीर्घिका।
आपण कुठल्या गॅलेक्सीत राहतो? मंदाकिनी म्हणजे मिल्की वे. आपल्या बाजूची सगळ्यात जवळची गॅलेक्सी कुठली? चॅट बॉक्स मध्ये लिहा. चॅट बॉक्स अँड्रोमेडा. व्हेरी. मग ग्रुप त्यांनी लिहिले द मिल्की वे इज अ गॅलेक्सी इन विच अवर सोलार सिस्टम इज लोकेटेड. पण इथे एक इंटरेस्टिंग गोष्ट या फोटोत दाखवली बघा. तुम्हाला पाहिजे तर परत दाखव. सॉरी त्यांनी इथे ह्या मिल्की वे गॅलेक्सी मध्ये इथे काहीतरी पॉइंट आउट केलं. ओके, इथे त्यांनी पॉइंट आउट केलं की दिस इज द लोकेशन ऑफ. काही अज्ञानी लोक जी विनाकारण प्रत्येक गोष्टीत धर्म घुसवतात, त्या वेड्या लोकांना पूर्वी वाटायचं की पृथ्वी चपटी है, मतलब अपनी जो अर्थ है वो फ्लैट है. कुछ लोगों को लगता था अर्थ सेंटर में है, कुछ लोगों को लगता था सन अगर सेंटर में जब प्रूव हुआ, मतलब हेलियोसेंट्रिक मॉडल, तो उनको ऐसा लगता था कि सन अपनी गैलेक्सी के सेंटर में है. फाइनली ये प्रूव हो गया कि सन भी अपने गैलेक्सी के सेंटर में नहीं है, और नहीं है तो अच्छा है, नहीं तो अब तक हम शायद ठीक से पैदा भी नहीं हुए थे, क्योंकि बीच में ब्लैक होल है, वो तो हम सबको खा जाता. तो ये सारी चीजें आपको समझ में आए, इसलिए ये चित्र मैंने दिखाया. फिर से टेक्स्ट की तरफ चलेंगे. The Milky Way is a galaxy in which our solar system is located. Milky Way is a part of local group of galaxy and there are many such galaxies in the universe. मेरा लेक्चर जिन्होंने इसके पहले कुछ सुना है उनको मालूम है कि 100 बिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सी है. Milky Way includes many stars smaller than our sun, as well as others that are 1,000 times bigger than sun. It also includes many other celestial bodies such as star clusters, nebulas, clouds of gases, clouds of dust, dead stars, newly born stars, so many things. The galaxy that is close to us is Andromeda. In Marathi, Hindi, it is called Devayani Dirghika. Okay. The universe includes innumerable galaxies, the space between them, and also energy. Okay. सब कुछ इंक्लूड करके यूनिवर्स, ब्रह्मांड यानी कायनात नाम के शब्द का इस्तेमाल किया जाता है. तो ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी है. इसके बारे में हमने देखा. जब आएंगे तो आपको हम दिखाने की कोशिश भी करेंगे. तो अभी हम चलते हैं चैट बॉक्स में. आपने कुछ गलती पिछले चीज. सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग. सर व्हाट इज एग्जैक्टली एक्चुअली ब्लैक होल? तो पूर्वा जी, ये क्या है कि ब्लैक होल एक ऐसा सिंगुलर पॉइंट है वहां पे. हाँ ठीक है शायद. तो एक सिंगुलर पॉइंट है कि जहां पे सारी चीजें ग्रेविटी से इतनी खींची जाती है कि खिंचाव के कारण वहां पे सेंटर में एक्चुअली कुछ प्रेजेंट है ही नहीं, मास और नॉर्मल चीजों के फॉर्म में. वो जाता है, इस कदर डेंस हो जाता है कि वहां पे लाइट भी वहां से बाहर नहीं निकल सकती. बट आप इतने छोटे हो कि आज की डेट पे ब्लैक होल मतलब जहां से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती, इतने हाई ग्रेविटी वाला कोई छोटा सा मैटर का या मैटर से भी परे वाला कोई पॉइंट. ओके, इतना याद रखिए. फुर्सत में कभी तो हम उस पर डिटेल में बात करें. हमने ये देख लिया. अभी हम थोड़ा आगे चलते कि गैलेक्सी के टाइप क्या. इस फोटो को अच्छे से देखना सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप इसमें देख सकते हो स्पाइरल आर्म गैलेक्सी. तो हमारी कौन सी वाली थी? मिल्की वे स्पाइरल टाइप. इलिप्टिकल गैलेक्सी, ओके, जो इलिप्स जैसी होती है. आप बोलेंगे एंड्रोमेडा क्या? नहीं, एंड्रोमेडा का व्यू वैसा है, बट एक्चुअली वो स्पाइरल टाइप की ही है. अभी बार्ड स्पाइरल क्या है? बीच में मोटा सा कोई ऐसा बार जैसा है और उसको आर्म्स है, तो स्पाइरल आर्म्स है, दैट इज बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी. इरेगुलर क्या है? अनियमित, मतलब कोई भी रेगुलर शेप नहीं है, ऐसी एक बंच की तरह जो है उसको बोला जाता है इरेगुलर गैलेक्सी. ये क्या है? ये गैलेक्सी यानी दीर्घिकाओं के प्रकार है. ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये 6 स्टैंडर्ड के सिलेबस का हिस्सा है. जो बच्चे इतने छोटे हैं उनको आजकल ये पढ़ाया जाता है, जबकि हमको इंजीनियरिंग होने के बाद भी किसी ने ये नहीं बताया. तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको ये सब पढ़ाया जाता. और एक टॉपिक खत्म करेंगे जो पिंक में लिखा है,
The scientist Edwin Hubble showed that there exist many galaxies beyond Milky Way. In 1990 उनके नाम के स्मरणार्थ उनको याद में नासा ने अमेरिकन स्पेस एजेंसी जो है उन्होंने हबल टेलीस्कोप को लॉन्च किया। तकरीबन 2 मीटर डायमीटर वाला ये ऑप्टिकल टेलीस्कोप है जो आसमान में छोड़ा गया। इसके रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, इसका मिरर चेंज करने के लिए भी लोग जाते रहते हैं, जिनको हम एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। The Hubble telescope has made it easier to look for stars, nebulas and so many other details जिनके फोटोग्राफ लेने हैं हमको। इससे हमको आज इंटरनेट पे जितने भी अच्छे अच्छे फोटो मिलते हैं नेबुलास के, है ना, मेसियर ऑब्जेक्ट्स के, वो सारी चीजें हबल स्पेस टेलीस्कोप से ली जाती है। तो 10 बज गए दोस्तों, आज हम यही रुकेंगे। अगली बार 6 के क्लास से शुरू करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम 7, 8, 9, 10। ऐसा हमारा जनवरी और फरवरी का सिलेबस एस्ट्रोनॉमी और यूपीएससी का वेडनेसडे को चलेगा। बाकी आपके रेगुलर क्लास होते रहेंगे। अभी भी किसी को परेशानी है तो आप लिख सकते हो, सो आई विल मेक सम चेंजेस एज पर योर गाइडेंस एंड माय कन्वीनियंस। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखिए। कुछ सवाल भी है तो वो भी लिखिए। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस स्लाइड नंबर 18। कुछ सवाल है, कुछ डाउट्स है, मेरे तरीके से कोई परेशानी है तो आप बोल सकते हो। नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी जिन बच्चों को वॉइस का प्रॉब्लम है, जैसे बांडकर को प्रॉब्लम है, ओके, देन और भी 2-3 लोग को था, बट बांडकर हैज प्रॉब्लम। तो बांडकर जी आप अपना नेटवर्क चेक करिए, ओके, यू हैव टू चेक योर नेटवर्क। बट यहाँ पे जितने लोग हैं तकरीबन 25 लोग हैं। 25 लोगों को अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है और आवाज का प्रॉब्लम नहीं और आपको है, तो इट इज यूर नेटवर्क प्रॉब्लम, ओके। फिर भी आप डालते रहते हो तो अब दूसरे बच्चे रिस्पॉन्स करते कि नहीं आवाज आ रही है, तो इससे आपका डाउट क्लियर होता होगा। नोबडी हैज गॉट एनी डाउट। तो हम आज के लिए क्लास, अभी बांडकर जी ये इशू है कि आपका नेटवर्क फुल है और मेरा आवाज सिर्फ आपको ही नहीं आ रहा है, तो मतलब मैं ही जानबूझ के आपका आवाज न पहुंचे ऐसी कुछ फैसिलिटी तैयार करके रखी है, ऐसा ही बोलना पड़ेगा ना, ठीक है। सो नो डाउट, थैंक यू टू फॉर, विल स्टॉप फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय। ओके, थैंक यू, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय। बाय बाय, चलो सी यू। फिर से आपसे मुलाकात होगी मेरी वेडनेसडे को, टाटा बाय बाय। भव्या इतना लेट क्यों ज्वाइन की? 10 बज गए। आप बाकी पूरा लेक्चर थी क्या? स्विच ऑन योर माइक। आर यू देयर? ठीक है, चलो क्लास खत्म हो गई, टाटा बाय बाय, सी यू अदर टाइम।